So hello everyone, today I am solving code forces problem difficulty 1100. This is the first one. I also give the link of the problem in the description. So what is given? You are given 3 integer n, l, r. You need to construct an array a1 to n such that all ai between l to r and cd of a of I for all integer need to be distinct. Okay, is greatest common difference. Okay. Here what is given? We are given 3 elements n, l and r, and we have to construct a array A of size n such that for all element GCD of I comma a of I is different. So if it is different, okay, so I can say that GCD of I comma a of I will be less than equal to I. Okay, like for 2 and here value anything, it must be less than the this number 2. If it is multiple of like 4, 6, 8, then it will be 2, or if it is 1, then it will be less than 2, like 1. Okay, so this condition will be always there, so it will be always less than I. So it is better, so like what we have to find, we have to like a of all n integer having distinct value. For distinct value, it is good to have it is equal to I. Okay. So GCD of I comma I is equal to I. Yeah. So we need to find a of I such that it is a multiple of, like, remainder with I is equal to 0, and it is between a of I is between L to R. This is what we need to do. So first observation is that we have like GCD of I comma a of I is equal to I. So it will be different for all the element, and it is good. Second, we need to find just an element a of I, such that it is a multiple of I. To do so, like, how can we find that if there is an element between L to R such that it is a divisible by I? So let's say I will be 9, and this is 40, and this is 46. Okay, this is the first scenario. And in second case, I will say it is 40 and it is 50. So in this case, I will say like 40 minus 1 divided by 9. So we will divide it. So if we will find like, and 47 by 9. So like this is 40 and this is 49. So I will 46, sorry. So I will say like divide both of them with the our I. So minus 1, because this is included here and here. So minus 1, this is 39. So divide both of them with 9. So we will see what is the number will be 6. That means from 0 to that means having 6 multiples of 9. And here it is, if it is same, like, but here it is 40, here it will be, no, here will be 4, sorry. Like what I am saying is, this is 30, 40, and this is 46. So I will say like 40 minus 1, that is 39 divided by 9. So this will give the count of a number that is divisible by 9 between 0 to this element. So this will give 4. So we having 4 elements which are divisible by 9 between 0 to 39. Similarly for 46 divided by 9, that will give 5. So we here say that there is one number which is divisible by 9. And how there can be, like, if it is 72 or something, it may be greater than 5 also, but we need a one number. So what we can say that, like, the
4 लाइक ये 39 के लिए कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब 4 नंबर इससे छोटे हैं। ओके, अब मैं इसमें +1 कर दूँ, मुझे जस्ट इससे बड़ा नंबर चाहिए, जस्ट वो मुझे इसकी रेंज में चाहिए, ठीक है। और इसको मैं आई से 9 से इंटरआई कर दूँ, ये 45 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि लाइक इससे जस्ट जो इससे डिजिट आ रहे हैं ना, वो कितना भी आ रहा है, मतलब 4 5 कितना भी एक्स आ रहा है, x+1 इंटू में आई कर दूँ, अगर वो ही छोटा, तो फिर जी तो मैं ये नंबर लिख लूँगा, लाइक दिस विल बी द नंबर वेयर आई एंड दिस GCD will be I, that I want to say. Okay, so like this is the solution of the problem, and for the like this is the next number. Yeah, or we can find that, like we can directly find that we, if we don't want to divide, so we just find that if this is smaller than 40, like this is R, then this is in the range, otherwise it is not, like then it is okay, ठीक है। अगर ये इससे R छोटा हो, मतलब कि एक एलिमेंट है इसके अंदर, एटलीस्ट एक एलिमेंट है L2R में, नहीं हुआ तो नहीं है, मतलब इससे बड़ा हुआ तो मतलब कि वो एलिमेंट ही बाहर जा रहा है। तो लाइक वी कैन, सो कोड करते इसको इस प्रॉब्लम में। या ओके, वी हैव टेस्ट केसेस एन वेक्टर ऑफ एन एंड ओके नो एन अप टू हियर इट इज गुड। 3 नंबर दे रखे इंट एल आर, इंट एल, तो मुझे वेक्टर बनाना है, वेक्टर ऑफ ए ऑफ, और मैं बू ले लेता हूँ वैल्यू, ये चेक करने के लिए एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो मैं प्रिंट करा दूंगा अरे को, नहीं कर रहा होगा तो नहीं कराऊंगा। मैं गो थ्रू हो रहा हूँ 1 to i+1, मुझे एलिमेंट चाहिए 1 से n तक। अब मैं इंट जेड, मतलब कि कितने एलिमेंट है एक्स, वो क्या जाएगा L-1 डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट इट इज आई, और इंट वाई इज इक्वल टू आर माइनस, सॉरी आर डिवाइडेड बाय आई। अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर हुआ कि लाइक y-x ग्रेटर देन 0 हुआ, तो मतलब कि एलिमेंट इसके अंदर है, नहीं तो नहीं है। इसके अंदर है तो मैं वो ए ऑफ आई में डाल दूंगा कि L-1 डिवाइडेड बाई, ये कोई एलिमेंट आया इसको मैं +1 करके इंटू आई, मतलब लाइक L-1 से कोई छोटा होगा जो डिवाइड किया होगा, तो उसमें एक प्लस कर दूंगा तो L के और R की रेंज में जाएगा, नहीं तो एल्स अगर नहीं हुआ तो मैं कह दूंगा कि वैल इज इक्वल टू फॉल्स है, ठीक है। इफ़ वैल फॉल्स है, ट्रू है, तो सी आउट यस वी गॉट इट, मतलब हमें अरे मिल गया, और मैं प्रिंट करा दूंगा वो I-1 जस्ट सी आउट ए ऑफ आई, सो +1 लाइक हेयर इट इज आई, इफ -1, वो मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आई इज इक्वल टू 1 से n तक है, ठीक है, लेकिन 0 से n रख लो, तो यहाँ 0 से n रेंज है, क्योंकि देख मैंने यहाँ पर डिवाइड कर वो 0 से n, और अगर नहीं -1 करना है तो यहाँ n+1 आ जाएगा। सी आउट हैंडल, अगर नहीं हुआ एल सी आउट में, yeah, that's it. So we will check for the example. uh yeah, Shaman, running, yeah.
यस यस नो यस, यस यस नो यस, यस यस नो यस, सही है। लेकिन ये रिकॉग्नाइज तो कर लेगा ना। ओहो, ये दिक्कत हो सकती है। सही है। हाँ, या दैट्स गुड। सेकंड प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, मेकिंग टावर्स। ओके, प्रॉब्लम क्या दे रखे हैं। अब लाइक तुम क्या क्या करो, मैं जैसे प्रॉब्लम पढ़ता हूँ ना, फिर तुम अपने आप सोल्व करने की कोशिश किया करो। अगर खुद से सोल्व हो रहा है ओके, नहीं तो फिर ये रिज्यूम कर लेना वीडियो। ओके ना, वीडियो को पॉज कर लिया करो क्वेश्चन पे। ठीक है। ओके, यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ n colored blocks. The color of I block is Ci and integer between 1 to n. Okay, Ci की वैल्यू 1 to n तक है। You have to place the block in a sequence on an infinite grid in the following way: 1 at block 0 0, then from 2 to n it will be placed. If I minus 1 block placed x y x and y, it can be placed on at x plus 1 by x minus 1 and y plus 1. Okay, but not downward. If it is not, if as long as no previous block was placed at that position. Okay, a tower is formed such that they are blocked in a position that will be in y direction. Okay, from some position x, and so we need to be, there is no need to, like x can be 0 0 from any point. Okay, that is good. The size of tower is s. Okay, s element, s block, then s is size, and tower of r is a tower such that all block in it have color r. Okay, all color must be r, and we have to solve this problem r from 1 to n, solve the problem independently. Oh, we have to calculate for every r. Okay, find the maximum size of a tower. Okay, like we have this, so first we have solving for one, then second, matlab we can, like what is given problem is that we are given some blocks. Okay, some block we are given. Okay, some block we are given having their colors, like this color is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 1, this is 3. So we have to solve this problem for, like first I am solving for, like we have to independently solve, like I am solving for 1, so I have to make the, तो लाइक मैं फर्स्टली 1 के लिए सोल्व कर रहा हूँ, आर इज गुड मतलब 1 कलर के लिए। तो मैं मैक्सिमम क्या करूँगा कि जो वर्टिकल टावर होगा वो मैक्सिमम हो सिर्फ कलर 1 के लिए। मैं सिमिलरली फिर मैं दोबारा सोल्व करूँगा 2 के लिए, फिर मैं दोबारा सोल्व करूँगा 3 के लिए। ओके, और मैं प्लेस कहाँ कहाँ कर सकता हूँ, अगर ओके अगर ये 0,0 0,0, मैं यहाँ फर्स्ट तो यहाँ पे आएगा, फिर सेकंड मैं यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ y प्लस 1, ये x प्लस 1, y माइन प्लस 1, एंड यहाँ रख सकता हूँ, मतलब 3 डायरेक्शन में रख सकता हूँ। y माइनस की डायरेक्शन नहीं रखता और 3 डायरेक्शन में रख सकता हूँ। ओके, तो अगर मैं, तो फिर पहली बात तो ये होगी कि अगर वो सेम ही है, मतलब जस्ट आ गया तो मैं यहीं रख दूंगा। अगर इसके बीच में डिस्टेंस, अगर लाइक 1 के बीच में डिस्टेंस कितनी हो सकती है, ओड हो सकती है या इवन हो सकती है। ठीक है, तो ये दो केसेस हो सकते हैं, लाइक सेम के बीच में डिस्टेंस ओड होगी या इवन होगी। तो फिर ओड के केस में क्या होगा, अगर डिस्टेंस ओड हुई तो लाइक जैसे 5 हुई, मतलब कि डिस्टेंस 5 है, मतलब उसके बीच में 4 ब्लॉक है।
डिस्टेंस 5 मतलब कि ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो 5 माइनस 4, तो जैसे कि इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, E1 है, E1 है। तो फिर इसमें मतलब कि कितने ब्लॉक हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लाइक अगर ओड नंबर ऑफ ब्लॉक या ओड नंबर ऑफ डिस्टेंस हुई तो इवन नंबर ऑफ ब्लॉक होंगे, इवन नंबर ऑफ ब्लॉक। ठीक है, लाइक अगर इसके बीच में डिस्टेंस अभी वन है तो ओड नंबर ऑफ ब्लॉक है, 2 3 एंड 4, 3 ब्लॉक है ना, और ये डिस्टेंस 4 है, तो n-1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर ओड है और या इवन नंबर ऑफ ब्लॉक है तो लाइक 4 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक हैं तो 1 2 मतलब पांचवा ब्लॉक मेरा सेम कलर का है, तो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, फिर मैं 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक और पांचों में इसके ऊपर रख दूंगा। ओके, अगर ओड हुआ लाइक 5 हुए तो 1 2 3 4 5 मैं अगर यहाँ रख दूँ तो छठा तो मैं यहाँ रख ही नहीं सकता, फिर मैं यही रख सकता हूँ, फिर नीचे तो मैं आ ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि माइनस माइनस वाई में तो कभी जा ही नहीं सकते, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर डिस्टेंस ओड है, मतलब डिस्टेंस ओड है और इवन नंबर ऑफ ब्लॉक हैं बीच में, तो फिर वो लाइक ऐसे कह रहा हूँ मैं कि जैसे कि ये अरे है, इंडेक्स है, पहला मेरा लाइक मैं कलर r = 1 के लिए सोल्व कर रहा हूँ, तो पहला 1 पे है, फिर दूसरा 5 पे है, ये फिर 6 पे है, ये 7 पे है, ये 8 पे है, ये 9 पे, ये 15 पे, कुछ कट ले ली मैंने, कोई नहीं, ये कोई, इसको मैं 10 पे ले लेता हूँ, ये 8 पे, ये 9, हाँ ये 8 से है। ये 8 है, ये 12 है, तो अब इनके बीच में डिस्टेंस कितने, नंबर ऑफ ब्लॉक कितनी होगी, ओ, ये होंगे ओड है, इवन, मतलब 5 - 4 इवन है। ठीक है, ये -1 ये ओड है, 6 और 8 ये इवन है, ये भी इवन है और ये ओड है। अगर ये इवन हुई तो इसके बीच में ब्लॉक कितने होंगे, ओड होंगे, मतलब इसके बीच में होंगे 2 3 और 4, मतलब ओड ब्लॉक है। ठीक है, ओड ब्लॉक है, तो ओड ब्लॉक को मैं साथ नहीं रख सकता, मैं इसके साथ फिर किसको रख सकता हूँ, ये 1 में, तो ये भी, ये क्या हो गया, इवन ओड, ये भी ओड हो गया, नहीं यहाँ, हाँ यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ब्लॉक होंगे। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोगों ने, इसको अगर देख सिंपल फंड है, अगर इवन हुआ ना तो फिर सेम नहीं रख सकते, अगर ओड हुआ तो सेम रख सकते हैं। ठीक है, यही दिक्कत है, अगर इवन है तो इन दोनों को सेम साथ में नहीं रख सकते। ठीक है, अब इन दोनों को साथ में रख सकता हूँ मैं। हम्म, फिर इन दोनों को, इवन है, इन दोनों को साथ में नहीं रख सकता, क्या मैं इन दोनों को साथ में रख सकता हूँ, इसको और इसको, टोटल डिस्टेंस की मुझे इवन ओड इवन, तो ये तो इवन ही हुई, नहीं रख सकता। फिर इन दोनों को साथ में नहीं रख सकता, इन दोनों को साथ में मैं रख सकता हूँ। ठीक है, तो फिर बेसिकली मुझे क्या करना है, मतलब कि सबसे सिंपल वाला आंसर होगा, मैं इस पॉइंट पे हूँ तो मैं इस पॉइंट से मैं पीछे देखूंगा कि इससे और डिस्टेंस पे कौन कौन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं डीपी ले लूँ, डीपी ऑफ आई, मतलब इस कलर की और इस इंडेक्स पे, तो इस इंडेक्स पे 1 हो गया, इस पे भी 1 हो गया, मैं इस पे साथ नहीं रह सकता, ये ओड है, तो मैं पीछे ओड पे कौन है, 5 है, मैं इस पे चेक करता हूँ,
इस पे इवन है, नहीं यहाँ पे ओड आएगा। तो यहाँ पे ओड आएगा, तो यहाँ पे मैं इसको इसके ऊपर रख सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ओड क्यों आएगा, इवन है, ओड, फिर एक ये भी तो आ गया। हम्म सही है सही है। हम्म, देख ये इवन है, मतलब इसके बीच में चार, तीन ब्लॉक है, ओड ब्लॉक है, ठीक है। फिर एक ब्लॉक यहाँ है, फिर इसके बीच में भी दो ब्लॉक है, तो ये टोटल क्या हो गए, इवन ब्लॉक हो गए। तो ये मैं ओड इवन नहीं लिखता, ये कंफ्यूजिंग कर रहा है, दोबारा करता हूँ। इसको क्या हो गया, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस। तो फिर मैं यही कह रहा था कि लाइक ये इंडेक्स वन इंडेक्स है, ये टू इंडेक्स है, ये मतलब यहाँ पे आर कलर के बॉक्सेज रखे हैं, वन वन पे ये, फिर मैं इसको कर रहा हूँ, वन पे रखा है, फिर ये रखा है फोर पे, ये रखा है एट पे, इंडेक्स पे ये 12 पे, ठीक है। तो अब मैं चार ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि इसके बीच में कितने वो हैं, कितने वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक हैं। इसके बीच में पाँच, चार चार, तीन ब्लॉक हैं। इसके बीच में तीन ब्लॉक है, ओके। अब मैं ये देखता हूँ कि ओके ठीक है, अब इसमें मतलब अब मैं डीपी बना रहा हूँ कि इस इंडेक्स पे कितने आ सकते हैं, डीपी ऑफ आई। तो यहाँ पे तो वन आ सकता है, मतलब डीपी ऑफ आई क्या स्टोर करेगी कि आर कलर के, और मैं ये भी कर देता आर, ठीक है, आर कलर के आई डिस्टेंस पे कितने स्टोर हो रहे हैं, मतलब कितने आई डिस्टेंस तक कितने रख सकता हूँ मैं मैक्सिमम, ठीक है, कितने का मैं टावर बना सकता हूँ। फिर यहाँ पे बीच में मैं यहाँ से चेक करूँगा आई पे, वन पे, हाँ ये मतलब इससे इवन डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो फिर मैं इसको ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, टू, तो मतलब ये इसको ऊपर रख जाएगा, ये टू हो जाएगा इसकी डिस्टेंस। फिर यहाँ पे थ्री है, तो इस पे मैं चेक करूँगा, इस पे नहीं होगा, लेकिन जो इस पे आएगा इस पे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तुम सोचोगे लाइक टू और थ्री है तो फाइव होगा, लेकिन ये भी बीच में है, ठीक है ना। तो ये भी बीच में, तो इसमें भी टू हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे आया थ्री, या इस पे नहीं रख सकता, सिक्स, थ्री और थ्री सेवन, इस पे भी नहीं रख सकता, इस पे रख सकता हूँ, तो टू। तो मैं ये मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम टावर मैं टू का बना सकता हूँ। एक तो ये है कि मैं, तो ये कितनी फॉर एवरी के लिए ये एन स्क्वेयर में देगा, ये सब के लिए एन स्क्वेयर में वर्क करेगा, ठीक है ना। मैं मतलब पीछे जा के मतलब कि मैं एक जनरल डीपी लिखूँ, तो डीपी क्या होगी, वो डीपी होगी, डीपी ऑफ आई फॉर एनी कलर्स आर विल बी लाइक मैक्स ऑफ डीपी ऑफ जे
4 कलर आर, ठीक है, जे, और जे 0 से i-1 तक होगा। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो यही होगा सॉल्यूशन इसका, लेकिन ये तो एन स्क्वायर में वर्क करेगा। और यहाँ पे रेंज तो कितनी है, 10⁵ है, तो ये तो वर्क नहीं कर सकता। तो अब देख, अब इसमें क्या देखने का क्या बात है कि लाइक हमें बस, मैं इस इंडेक्स पे हूँ तो मुझे सभी में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी दो इंडेक्स होंगे, या तो ओड वाला होगा या इवन वाला होगा, ठीक है ना। अब जो लाइक यहाँ से ओड वाला होगा या इवन वाला होगा, तो मैं ओड वाले पे रख सकता हूँ। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं लाइक मैं इस पे रख सकता हूँ, क्योंकि ये अब देखिए ये है 8 है, ये इवन का इंडेक्स है, ये इवन का इंडेक्स है, और ये ओड का इंडेक्स है। तो मैं इसको किस पे रख सकता हूँ, ई ओड वाले पे रख सकता हूँ, क्योंकि उसके बीच में वो इवन नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँ, तो मुझे लाइक एक जनरल आइडिया देखो, तो मुझे सभी इंडेक्स पे वापस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे बस दो चीज़ पे जाने की ज़रूरत होगी, या ओड है या इवन है। तो मैं दो वैल्यू ले लूँ कि मतलब कि ओड मैक्सिमम कितना है और इवन मैक्सिमम कितना है। अब मैं इसको इवन है तो मैं इसको ओड पे रख सकता हूँ, तो इस पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओड मैक्सिमम +1, इस पे इतनी आ जाएगी। अगर इवन ये भी वन है तो इस पे भी ओड +1। तो ऐसे में अपडेट करता रहा, तो मुझे बस अब समझ में आएगा कि मुझे हर एक मतलब कि हर एक वैल्यू स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। डीपी ऑफ फ्रॉम i1 to n ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं बस लाइक 0 के लिए मैं ओड कह रहा हूँ और 1 के लिए इवन। तो मैं डीपी दो की डीपी बन जाए वो भी सही है, और एन कलर्स है तो एन के लिए। तो मैं अगर ये किसी इंडेक्स आई पे है, आई पे है, तो आई अगर ओड या इवन है, आई में रिमाइंडर बाई 2 करूँ, ठीक है। आई अगर 0 या 1 है तो सेम प्रियोरिटी के, तो अगर वो है मतलब ये किसी आर्म के लिए मान ले, ये आर के लिए कोई कलर आर है, तो फिर मैं किसी सेम प्रियोरिटी के लिए वो नहीं होगा। लेकिन अगर ये डिफरेंट प्रियोरिटी का है, मतलब ये अगर 2, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, erase करने पे। तो इसमें से मतलब वो सेम इंडेक्स का तो सही है, और मैक्सिमम वैल्यू ठीक है, ये तो सही है, लेकिन या तो इसमें से अगर सेम इंडेक्स का है तो ये होगा, अगर डिफरेंट मतलब कि अगर ये मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो सेम हुआ, ठीक है, तो फिर वर्क नहीं कर रहा अभी, चल कोई नहीं। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब कोड ही लिखना है कि अगर ये सेम इंडेक्स का हुआ, सेम का है, तो इसमें ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर डिफरेंट इंडेक्स का हुआ तो उसके बीच में इवन नंबर ऑफ ब्लॉक होंगे, ठीक है, तो फिर उसमें +1 हो जाएगा। ठीक है, देख अब मैं कोड करता हूँ। चल कोई नहीं, तो फिर इंट एन
ई एन और ये वेक्टर ए ऑफ एन और आई टू एन मैं ले लूँगा। और मैं अब वेक्टर ऑफ आई डीपी बना रहा हूँ, वो बस दो की चाहिए मुझे। और ये एन ऑफ कलर तो एन हो सकते हैं, तो एन की, ठीक है ना। हम एन प्लस वन ले लूँ क्योंकि मैं वन से स्टार्ट कर दिया, जीरो से चलो को देख लेंगे। अब मैं फोर इंट आई इज इक्वल टू जीरो टू एन चला रहा हूँ, आई टू से एन तक। इफ इंडेक्स अगर डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ आई, डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ आई, इसमें कलर कौन सा है, सी ए आई कलर है, ए ऑफ आई कलर है इसका। तो कितना जाएगा, मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई कॉमा ए कलर ए ऑफ आई, या ये डीपी ऑफ आई ऑफ ए ऑफ आई प्लस। मतलब कि देख, अगर ये है आई, ये रिमाइंडर बाई टू है, मतलब कि अगर ये ओड है, लाइक इवन है, तो ये जीरो जाएगा। तो इवन वालों के साथ तो ये मैक्सिमम ही आएगा, लेकिन अगर ये ओड हुआ, ठीक है, तो ओड कैसे होगा, इसका अपोजिट के लिए मुझे ये वन लेना पड़ेगा, इसका अपोजिट के लिए प्लस वन हो जाएगा। ओके, ये आंसर आएगा। ये आंसर आएगा। तो मुझे प्रिंट करने हैं सभी एन के लिए, और मैं ए ऑफ आई को जीरो से वन ले रहा हूँ। जीरो से वन ले तो भी सही है, नहीं तो इसको बस प्लस वन कर दो तो भी सही है। अब ये वन, ये एन तक, तो इसमें या तो ओड वाला मैक्सिमम होगा, मैक्स कौन सा होगा, ये तो ओड वाला ऑफ आई कलर के लिए, या इवन वाला कॉमा आई, ये। तो बेसिकली क्या करना है, देखिए अगर डीपी ऑफ जीरो किसी कलर आर के लिए है, ठीक है, तो फिर वो मैं क्या ले रहा हूँ, मैक्सिमम डीपी ऑफ, अगर वो सेम प्रायोरिटी की है तो फिर वो आर ही रहेगा, मतलब कि कितना ओड तक कितना मैक्सिमम, ये अगर मैं जीरो को ओड ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब ओड तक कितना मैक्सिमम आ रहा है, नहीं तो वन ऑफ आर प्लस वन। तो देख मैं जैसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये है पाँच, पाँच पे कोई ब्लॉक है, और ये है डिफरेंट हो जाए, ये छः, ये आठ पे ले ले, आठ पे कोई ब्लॉक है, तो अगर ये आठ पे है तो ये जीरो हो जाएगा, रिमाइंडर बाई टू इक्वल टू जीरो, तो ये वाला कंडीशन लगेगी जीरो। तो मतलब कि अब ये ओड तक पे तो मतलब कि ये सेम प्रायोरिटी के, मतलब कि अगर मान ली छः पे भी है, छः तक यहाँ तीन है और यहाँ दो है, ठीक है, तो फिर ये आठ है, तो ये छः भी जीरो होगा, लेकिन इस पे रख नहीं सकते क्योंकि इसके बीच में ओड नंबर ऑफ ब्लॉक नंबर वो है, मतलब एक ही है वो ओड है, तो फिर इसके ऊपर मैं ये नहीं रख सकता। लेकिन फाइव और एट के बीच में इवन नंबर ऑफ ब्लॉक है, जैसे कि पाँच और छः दो है, ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ ब्लॉक है, तो मैं ऊपर नीचे रख सकता हूँ पाँच और आठ को, तो वो प्लस वन हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये अगर डिफरेंट प्रायोरिटी मतलब ये इवन है ये ओड है डिफरेंट है तो प्लस वन हो जाएगा, अगर सेम है तो प्लस वन नहीं होगा। बस यही कहना चाहता हूँ।
3 2 0 0 0 3 0 2 0 0, फिर 1 1 0 4। ओके, सही है। ओके, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया, यू आर गिवन एन स्ट्रिंग एस वन टू एस एन ऑफ लेंथ एट मोस्ट एन। तो फिर टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? एन 10⁵ तो 10⁵ में ही रहेगी, 10⁶ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ एन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर ईच स्ट्रिंग एस ऑफ ए डिटरमाइन टू स्ट्रिंग एस ऑफ जे के सच दैट आई और जे को हो, आई और जे प्लस हो जाए, मतलब कोई भी स्ट्रिंग। और जे कैन बी इक्वल टू, मतलब सेम स्ट्रिंग भी दो बार यूज़ कर सकते हैं। जे कैन बी इक्वल टू के। ओके देन, ओके, बस तो ये तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। तो देख, हमें ऐसी स्ट्रिंग्स दे रखी है, लेकिन मैक्सिमम 8 की लेंथ हो सकती है। ठीक है, लाइक ए बी सी डी ई, ए बी, तो ए 3 3 6 7 ए। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे पास ये सारी स्ट्रिंग है, ये सारी स्ट्रिंग मैप में स्टोर कर लेता हूँ। मैं कह देता हूँ मैप मैं बना लेता हूँ स्ट्रिंग और बूल का। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे सर्च कर लेता हूँ कि सारी स्ट्रिंग है इसके अंदर, सारी स्ट्रिंग है। तो फिर मैप क्या करता है, मैप स्टोर कर लेता है और लॉग ऑफ एन में मुझे आंसर दे देता है। तो फिर यहाँ पे ऐप देखे तो कितनी स्ट्रिंग बन जाएंगी, ए और बी सी डी ई ए बी है, ऐसे ए बी सी डी ई ए बी है, तो एट मोस्ट 7 स्ट्रिंग बन जाएंगी। ठीक है ना, तो 7 के लिए ही रन होगा ये। तो फिर टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, एन इंटू 7 इंटू लॉग ऑफ एन, तो वो लगभग एन लॉग ऑफ एन आ गई, तो मतलब सही है। ठीक है, तो मैं यही करता हूँ, सारी स्ट्रिंग पे जा के देखते हैं और इनको मैप में डाल देते हैं। अगर कोई दोनों स्ट्रिंग, मतलब ये और ये दोनों अगर मैप में प्रेजेंट है तो मतलब कि ट्रू है आंसर, नहीं तो फॉल्स है। बस यही करना है, ये सिंपल। तो बस इसमें तो मैप का यूज़ करना है और किसी कुछ नहीं करना, मैप का यूज़ करना है और एन लॉग एन में हो जाएगा। तो टी इंट एन, एन के बाद स्ट्रिंग लेनी है, तो फिर मैं वेक्टर और स्ट्रिंग ऑफ ए ऑफ एन और आई ऑफ एन, मैं सब स्ट्रिंग को इनपुट ले लेता हूँ। हो गया, अब मैं मैप क्रिएट करता हूँ, मैप ऑफ स्ट्रिंग कोमा बूल, बूल ट्रू और फॉल्स देगा। ओके, तो फिर मैं फोर एंड आई इक्वल 0, आई लेस देन, ओ माय गॉड, आई लेस देन, तो फिर मैं यहाँ से डाल देता हूँ सीधा, इसको मैं यहीं क्रिएट कर देता हूँ और एम पी ऑफ ये स्ट्रिंग ए ऑफ आई आई है, इसकी वैल्यू मैं ट्रू डाल देता हूँ। तो अब अभी स्ट्रिंग मेरे पास ये मान ले एस स्ट्रिंग है, वो ए ऑफ आई है, इंट एन, साइज साइज में ले लेता हूँ, वो आ जाएगा एस डॉट एस प्लस 1। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई इज इक्वल टू 1 टू आई, मतलब कि स्ट्रिंग ए वो होगी एस ऑफ नोट, ए प्लस इक्वल टू एस ऑफ नोट। ठीक है, 1 से एस एस माइनस 1, क्योंकि लास्ट मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग तो हो ही नहीं सकती ना इसके अंदर, तो इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, मतलब कि लास्ट तक नहीं चला रहा, साइज -1 तक ही मैं वो कर रहा हूँ। ओके, तो ए तो क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी। ओके, और स्ट्रिंग बी, बी हो जाएगी
एस डॉट सब एस टी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स आई एंड साइज एन। अब देख यहाँ पर साइज एन डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर वो उससे बड़ा हुआ ना तो उतना ही लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है। क्योंकि नहीं यहाँ पे मुझे एन माइनस आई कर, सॉरी स्टार्टिंग फ्रॉम जे और एन माइनस जे, लेकिन एन भी डाल दो जब भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सर्च करूँगा इफ़ मैप ऑफ ए इज टू एंड मैप ऑफ बी इज टू, तो फिर सीधा ही ऐसा जाएगा, यस वी कैन फाइंड इट। तो फिर मुझे रिप्लाई कैसे करना है, ओ बुलियन में रिप्लाई करना है, ओके। स्ट्रिंग रिजल्ट ऑफ साइज एन, तो फॉर आई टू एन, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ये भी सही है, बूल वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स, ये आ गया तो फिर वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू हो गया, मतलब दोनों स्ट्रिंग है, मैं ब्रेक कर दूँगा, ठीक है। इफ़ वैल ट्रू है तो मैं तो करूँगा वन, वन ऐड कर दूँगा, नहीं तो मैं इसमें ऐड कर दूँगा जीरो, बस यही मेरा स्ट्रिंग हो जाएगी, ओके। स्ट्रिंग, अच्छा एस टी आर आई एन जी, ओ माय गॉड, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, जीरो 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 वन जीरो जीरो जीरो, कुछ तो गड़बड़ है, तो कहाँ दिक्कत हो रही है। ये लिया मैंने स्ट्रिंग का, मैंने बोल लिया ये ट्रू है, ठीक है ट्रू है। फिर यहाँ से जीरो लिए, एस ऑफ जीरो है वो, ठीक है। मैं एक को तो ऐड ही नहीं कर रहा, एस ऑफ जे ऐड भी तो होना चाहिए ना। या आई गॉट इट, माय मिस्टेक। मतलब स्ट्रिंग साथ साथ बढ़ती भी तो रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर ए बी जीरो वन, ए बी सी इक्वल टू फाइव पी, अच्छा। दैट इज फक। मैं एस माइनस वन बताऊँ क्यों लिया है, क्योंकि मैं उसको लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो फिर वो एन तक चलेगी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, देख मैं, क्योंकि अब जो मेरा लास्ट वाला एलिमेंट होगा तो उसको तो मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, तो उसको तो लास्ट वाले को तो कंपेयर कर ही नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं साइज एस तक ले जा रहा हूँ। कम ऑन, या ओ माय गॉड, दिस थिंग wrong answer, are you serious boy, wrong answer in 80 fucking damn, 34 आया अभी तक तो, वन जीरो जीरो, ये आंसर क्यों दे रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एस मिल गई, ठीक है। कोड, कोड, तो फिर स्कोड और स्कोड, कोड तो फिर होगा ही नहीं, बताओ। कौन सी स्ट्रिंग में जा रहा है ये, स्ट्रिंग ए कॉमा बी, शायद कुछ क्या दिक्कत हो रही है यार, ये सही तो लग रहा है मुझे।
ओह शिट मैन, ये ऐसे ऐसा आएगा मैं एन, तो उसका साइज है ना, इसका इस स्ट्रिंग का साइज तो ऐसे ऐसे है ना। ये दिक्कत हो रही है, ये तो पूरा चल ही नहीं रहा। दिक्कत यहाँ हो रही है। अब तो कोई, वो क्या होगा, हर केस में उससे बड़ा ही हुआ होगा वो एन, इसलिए काम कर रहा था। ट्रेन एंड क्वेरीज, ओके। Along the railroad, there are stations from 1 to N and express train. Always travel along a road consisting of an station with indices U1 to UN, where the train travel along the road from left to right. Okay, start from U1 and stop at U2 and so on. Okay, it is possible that some station will be revisited. Okay, that's not a problem. अब के क्वेरीज दे रखे हैं with two different AI and AG. For each query determine where it is possible to travel. अच्छा, मतलब कि 3 5 3 5, अच्छा मतलब कि ए आई के बाद ए जे परसेंट होना चाहिए, मतलब बी जे परसेंट होना चाहिए। 3 और 5, 3 के बाद 5% है तो यस आ गया, नहीं तो नो आ गया। 1 के बाद 7, 1 के बाद 7 है नहीं, नो आ गया। 3 के बाद 10, 3 के बाद 10 नहीं है तो आंसर नो आ गया। ओके ओके या, तो बेसिकली क्या किया उन्होंने, बेसिकली क्या दे रखा है इन्होंने कि एक अरे दे रखा है। एक अरे दे रहे उसमें स्टेशंस की वैल्यू दे रहा है 1 to n, कुछ भी 1 to 10, 10⁻9 में कुछ वैल्यू दे रहा है, 2 3 8 7 1 5 6 7। अब ये बताना कि 3 से 8 तक मैं विजिट कर सकता हूँ नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे चाहिए ये 3 ये है, ठीक है। तो मैं मुझे क्या चाहिए कि 3 के बाद 8 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 3 के बाद मतलब यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 8 आ रहा है तो आंसर यस हो जाएगा, नहीं तो नो हो जाएगा। जैसे 3 के बाद 5 आ रहा है तो आंसर यस हो गया। ऐसे में लिखो 5 के बाद 3, 5 के बाद 3 नहीं आ रहा तो आंसर नो हो गया। तो मुझे यही करना है कि इसके बाद कौन कौन से हैं। 3 यहाँ भी होता, तो हाँ ऐसे कर सकते हैं। देख, मैं क्या करूँगा कि इसका इंडेक्स यहाँ पे और यहाँ पे, और इसका इंडेक्स यहाँ पे है, इसका मिनिमम इंडेक्स, इसका मैक्सिमम इंडेक्स अगर वो है तो या ये हो जाएगा। तो फिर मैं एक मैप लेता हूँ, क्योंकि 10⁻9 है तो फिर वेक्टर तो ले नहीं सकते, तो फिर मैप लेता हूँ मैं। तो मैप स्टोर करेगा इंट कोमा पेयर ऑफ इंट कोमा इंट। तो मुझे देख बेसिकली क्या चाहिए, अब मैं देख, मैं इसका जान लूँ कि ये इसका फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स किस पोजीशन पे है। मतलब फर्स्ट इंडेक्स इसका 1 पे है और इसका लास्ट इंडेक्स 8 पे है, कुछ 8 या 9 कुछ कहीं भी है, ठीक है। और दो इसका फर्स्ट इंडेक्स 1 पे 2 पे और इसका लास्ट इंडेक्स भी 2 पे, एक ही हो। तो मैं कहूँ कि इसका मिनिमम जो इंडेक्स है फर्स्ट वाले का, मुझे 3 से 8 जाना है, मतलब कि ए से बी जाना है मुझे, लाइक 3 से 8 जाना है। तो इसका जो मिनिमम इंडेक्स है, मतलब जो मिनिमम परसेंट है वो, और जो इसका मैक्सिमम है वो इस मिनिमम, इसका मिनिमम इसके मैक्सिमम से कम ही होना चाहिए। तो फिर वो 3 से 8 तक जाएगी। तो फिर मुझे बस इसका मिनिमम और हर एलिमेंट का मिनिमम और मैक्सिमम इंडेक्स चाहिए, तो फिर मैं इंट और मिनिमम और मैक्सिमम इंडेक्स चाहिए, बस यही है। आई थिंक दिस विल इजीली सोल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो मुझे मिनिमम और मैक्सिमम इंडेक्स चाहिए, उसके लिए मैप स्टोर ले लूँगा मैं। ओके, तो फिर क्या क्या दे रखा है, एन और के एन और के यहाँ से लेते हैं, इंट एन कोमा के, तो सीन एन कोमा के।
अब मैं मैप बनाता हूँ पहले, इंट कोमा पेयर ऑफ इंट कोमा इंट, और ये स्टोर करेगा मिन कोमा मैक्स स्टोर करेगा ये, पहले मिन दूसरी मैक्स, ठीक है। वेक्टर मुझे ज़रूरत नहीं है वैसे, और यार ज़रूरत तो क्या ही पड़ेगी शायद, वेक्टर वेक्टर में स्टोर करके फिर दोबारा मैं उनको इंटरेट करवाऊँगा, उससे अच्छा तो मैं सीधा इंटरेट करवा लूँ, ठीक है ना। सी इन एफ एक्स, तो फिर एम ऑफ एक्स वो क्या होगा, एम ऑफ एक्स की फर्स्ट वैल्यू वो होगी मिनिमम, पहली है मिनिमम वैल्यू मेरी, वो होगी मिनिमम ऑफ एम ऑफ एक्स जो इसके पहले से है, और अभी जो इंडेक्स, मैं इंडेक्स वाई प्लस वन ले रहा हूँ, एम ऑफ एक्स डॉट सेकेंड वैल्यू होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम जो भी जो अभी है, अभी तो सेकंड सेकंड है, और जो इंडेक्स इसमें तो ये मेरे, अब मैंने सभी के लिए मिनिमम मैक्सिमम स्टोर कर लिए। अब मेरे पास के क्वेरीज हैं, के क्वेरी में ए से बी जा सकता है या नहीं, तो फिर इसका इंडेक्स मतलब फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा मिनिमम वाला, तो एम ऑफ ए डॉट फर्स्ट इसका मिनिमम इंडेक्स, सीधे ही लिख देता हूँ मैं भी को, इफ़ इसका मिनिमम इंडेक्स और उसका मैक्सिमम इंडेक्स बड़ा हुआ, मतलब वो बाद में आया इसके, तो सी आउट यस एल सी आउट नो, बस यही करना है या क्या करना है, यस यू ना सी आउट यस, तो फिर सही है। रनिंग व्हाट हैपन फोर के बाद मैंने, ओहो ये नहीं लगाया था, यस यस नो यस नो यस नो, ये तो गलत लग रहा है मुझे। हाँ बीच में नो आ रहे हैं, यहाँ पे दो चार पाँच नो आ रहे हैं, यहाँ पे कितने नो आ रहे हैं मेरे आंसर में, एक दो तीन पाँच नो नहीं आ रहा, ये तो सही तो होना चाहिए यार। पहले एन टी है, फिर एन कॉमा के है, तीन से पाँच, ओहो ये दिक्कत होगी। देख किसी को मिस्टेक समझ में आई, देख वो क्या है कि ये हमेशा जो होगा वो स्टोर करता है 0,0, ठीक है, 0,0 स्टोर करेगा, तो इसके लिए तो हमेशा जीरो ही होगा, समझ रहे हो। इफ़ ये मुझे लगाना पड़ेगा, अगर फर्स्ट जीरो है तो फिर तो एम ऑफ एक्स डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू आई प्लस वन आ जाएगा, अगर जीरो नहीं है तो ये हो जाएगा। अब से एक बार करें, दो दो चार पाँच, अब सही बार कह रहा था ना मैं, देर आर सम सिली प्रॉब्लम्स आर देयर। कम ऑन मैन, क्या बोल रहा है ये सब, यस रॉन्ग वर्डिक्ट इसमें दे दी इसने, रॉन्ग आंसर एक्सपेक्टेड नो फॉर फिफ्थ टोकन, मतलब पहले में ही गलत हो गया, एक्सप्योर यस, और ये सारा नो, पहले वाला ही गलत है भाई, दो और आठ, पहले वाले को पाँच हुआ, हम्म और बाकी सब के लिए जीरो जीरो होंगे ना, अगर कोई है ही नहीं इनपुट में तो उसका फर्स्ट भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो 0,0, तो फिर वो तो नो ही आएगा, सही है यार वो तो फिर। एक दो तीन चार पाँच 10,6, 10 से 6,
2 और 3 है इसमें, 10 और 6 फिर यस कैसे हो सकता है यार। एम ऑफ ए डॉट फर्स्ट एम ऑफ बी डॉट सेकेंड, 10,6 आ ही नहीं सकता भाई। एन कोमा के मैं ले लिया, फिर आई टू एन एक्स ले रहा हूँ मैं, 2 और 3 आ गए, 0 और 1। फर्स्ट इंडेक्स पे तो 2 है, 10 कैसे आ गया यार। ये कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई। मैं यहाँ पे निकाल के देखता हूँ इसमें क्या क्या है। एम में सी आउट इट डॉट फर्स्ट और दूसरे में इट डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट, 10 तो मतलब कि कैसे आ ही नहीं सकता। सेकेंड सेकेंड मैप के अंदर क्या क्या स्टोर हुआ है। 2, हाँ इसमें तो है ही नहीं 10। अच्छा 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 अच्छा, अब मैं समझ गया। ओके ओके ओके, क्योंकि अब देख अगर कोई एलिमेंट आया ही नहीं तो उसके लिए तो एम ऑफ ए 0 होगा ना। मतलब एम ऑफ डॉट फर्स्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब वो उसमें परसेंट तो होना चाहिए, क्योंकि अब देख जैसे कि कोई भी है, ठीक है, वो उस परसेंट ही नहीं है तो उसके लिए तो एम ऑफ फर्स्ट 0 है। और इसके लिए कुछ भी हो, मतलब ये परसेंट ही हो, फर्स्ट इंडेक्स भी हो, तो फिर पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अब सही चलेगा ये आई गॉट द आंसर। नाउ आई गॉट दिस। हम्म, आई थिंक इट विल वर्क। ओके, नाउ फिफ्थ प्रॉब्लम। ये अभी तक बड़ा टाइम ले रहा है यार ये। ओके, वो चल जाएगा। Now during a daily walk, Anis noticed a low number written on the ground. Now Alina want to find out some positive number of same length. Same length of leading zero so that sum of these number is a palindrome. Okay. एक नंबर पहले से लिखा हुआ है और दूसरा नंबर में फाइंड करना है जिसका सम पैलिड्रोम हो जाए। रिकॉल पैलिड्रोम लेफ्ट राइट सेम होना चाहिए, ठीक है। अरे बाप रे, ऐसा कितना बड़ा आ गया यार, टाइम बहुत ले रही है। चल ठीक हो जाएगा। अच्छा, गिवन क्या है टेस्ट केसेस, फिर एन एन दिस इज द लेंथ ऑफ नंबर, ओके रिटन इन द ग्राउंड। ओके, तो मुझे एक बहुत बड़ा नंबर दे रहा है कि उसकी लेंथ 10 की पावर 5 तक आ सकती है, मतलब स्ट्रिंग में ही ले सकते हैं उसको, हम ऐसे नहीं ले सकते। ठीक है, तो फिर अब वो कितना बड़ा नंबर है। अब कि जैसे मेरे कितना बड़ा नंबर हो यहाँ पे, कोई भी नंबर हो, 6 7 8 9 10 11 12, कितना भी बड़ा नंबर हो मेरे पास, उससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा। अब देख कितना बड़ा नंबर है, लाइक 1 8 7 6 5। अच्छा, और इसमें क्या दे रखा है कि नंबर पॉजिटिव विद और विदाउट जीरो स्टार नहीं कर सकते, ओके, और सेम लेंथ होना चाहिए, ओके। लाइक 5 8 9, तो मतलब कितना नंबर हो, तो अगर ये 9 नहीं है तो मैं इस सबको 9 9 9 9 बना दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जीरो जाए कोई दिक्कत भी नहीं है। तो फिर दो केसेस हो गई, अगर फर्स्ट नंबर अगर 9 नहीं है तो फिर सबको 9 9 9 9 9 9 बनाना है। ठीक है,
सेकंड में अगर 9 है तो ऐसे हो गया 9 7 2 6 5 4। तो फिर यहाँ पे अगर मैं 1 ले लूँ 0, इसको 0 बनाने में तो जान निकल जाए 6 0। और बाकी को मैं 9 9 9 बना दूँ। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि 9 9 हुआ, एक पीछे जा पे सकते हैं तो ये तो 11 हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। तो अगर 9 है तो फिर मैं इसको ऐसे बना दूँ 2 7 6 5 4। इसको मैं ये बना देता हूँ, 2 लिख देता हूँ तो 11। हाँ, सबको 1 1 बना देता हूँ मैं, 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अगर हाँ स्टार्टिंग 9 है तो मैं पीछे स्टार्ट करके सबको 1 1 बना देता हूँ। तो फिर 4 और 7 और 6 11 से ये भी, इसको कुछ लिख के 1 +1 1 1 सीधा 1 ही हुआ तो 0 1, ये 1। अब 9, अभी 2 चाहिएगा या 1 चाहिए, अगर पीछे से एक आई तो 1 चाहिएगा, ठीक है ना। इसकी अब 9 हुआ तो पीछे से मतलब का एक वो हासिल आई, ठीक है, वो कैरी आई 1, तो फिर एटलीस्ट 1 तो चाहिए ही चाहिएगा, क्योंकि 1 बनाना है मुझे। अगर 0 आया पीछे से तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो ये तो नॉन जीरो हो जाएगा, तो ये सही है, ठीक है। तो पहला केस अगर 9 नहीं है तो सबको मुझे 9 9 9 9 9 9 बनाना है। सेकंड केस अगर 9 है तो सबको मुझे 1 1 1 1 1 बनाना है। So these are two other cases, so we are working on this. So I'm just writing the code. Oh yeah, accepted. Yeah. टेस्ट केसेस फिर n और एक स्ट्रिंग। टेस्ट केसेस हो गया, n हो गया इंट n और एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग SCS। ओके, अब मैं रन करता हूँ स्ट्रिंग पे। हाँ, पहले तो ये देखता हूँ इफ़ एस ऑफ नोट इज इक्वल टू 9, 9 है या नहीं है। अगर नहीं है तो पहले उसको इस केस को लेते हैं। ओके, 9 नहीं है तो 4, मैं पीछे से चलता हूँ। अगर 9 नहीं है तो सबको 9 बनाए तो 0 से चलना, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रिंग रिजल्ट, ओके, इफ़ एस ऑफ आई इज इक्वल टू 9, नहीं नहीं, ये बार बार बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इंट टी इज इक्वल टू एस ऑफ आई -0 एंड मुझे बनाना है 9, तो रेस विल बी का करेक्टर बना दो इसको मैं, विल बी 9 - z। शायद ये बार देखते हैं ये वर्क कर जाए या नहीं, सीधा ही वर्क कर जाए या नहीं। ये इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको कर ऐसे लिखना पड़ेगा। चल देखते हैं सीधा वर्क करेगा तो ये भी वर्क करेगा, ठीक नहीं सीधा वर्क देख लेंगे। ये तो हो जाएगा बस, ठीक है, बस सी आउट रेस। ओके, अगर नहीं है तो मैं पीछे से वर्क स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आगे तो कुछ भी आ सकता है, मतलब 1 भी आ सकता है 0 भी आ सकता है, पीछे से पता चलेगा। और इंट और बूल कैरी के लिए मैं देख लेता हूँ, ये पहले तो मैं फॉल्स लिख देता हूँ, कैरी आ रही है नहीं, आई माइनस इंट ऑफ जे ये है, मुझे बनाना है 1। इफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 तो ये कैरी तो फॉल्स हो ही जाएगी, मतलब आगे तो नहीं जाएगी कैरी, अब पीछे से आ रही है तो सही है, ठीक है ना। कैरी फॉल्स नहीं, पहले तो जेड है, अरिफ अगर पीछे से कैरी आ रही है तो जेड प्लस प्लस हो जाएगा। और मैं पीछे से कैरी आ रही तो पहले +1 करना पड़ेगा, वो फिर बाद में देखेंगे। कैरी को मैं फॉल्स कर देता हूँ, ओके, ठीक है। अगर वो पहले से 1 या 0 से 1 है बीच में तो कैरी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो रिजल्ट विल बी 1 - z
प्लस 0, ये हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर वो 1 से बड़ा है तो मुझे 11 बनाना पड़ेगा। तो रेस विल बी 11 माइनस जेड प्लस 0, और कैरी ट्रू हो जाएगी। यही थिंक सो, ये वर्क कर जाना चाहिए। पहले तो ये देखना पड़ेगा इसमें से कौन सा वर्क करता है। लेकिन ये वाला वर्क करता है या ये वाला वर्क करता है, या दोनों वर्क करते हैं? या दोनों वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला आया है क्या, 221, फिर 2190। अच्छा, 21 में 9 10 0 हासिल, एक एक नौ तो यार, ये तो गलत आंसर दे रहा है। 9, इफ 9 है तो फिर मैं n-1 से एस ऑफ आई, यहाँ 9 आ गया। वेरी फॉल्स है, तो यहाँ 9 ही है। 9 है तो 11 में से 9 गए प्लस 0 की 2 आना चाहिए ना, ये 2 क्यों नहीं लेगा? ये 2 क्यों नहीं आ रहा भाई? 11 में से 9 2, देखने तो अब शायद वर्क कर जाए। अभी नहीं आ रहा। इंट के इक्वल टू 11 में से जेड के प्लस 2 क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, ये तो खतरनाक है। पक्का यही चलेगा ना? हाँ, यही चलेगा। कैरी अगली बार ट्रू, फिर अगली बार नो। एस ऑफ आई माइनस 0, ये तो नो ही आएगा, नो। फिर जेड -1, ट्रू हो गया। सी और इंडेक्स के लिए क्या क्या आ रहा है यार? जेड कितना आ रहा है? कि 1 के लिए 2 आ रहा है। ओ माय गॉड, अरे शिट मैन। अबे ये तो लाइक अपन रिवर्स में कर रहे हैं ना, तो फिर इसको तो रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा ना इसको, रेस डॉट बिगिन। ठीक है, समझ आ गया। मैं सोच रहा सही तो होगा यार, लेकिन n-1 से रिवर्स में जा रहे हैं तो रिवर्स में आउटपुट देगा। हाँ, अब सही है। डैम मैन। ओके, हो गई। सो या, थैंक यू गाइस, आज 11 से प्रॉब्लम करी थी। ओके।